میرے عزیزو، سب سے پہلا جو کلمہ ہم نے سیکھا تھا وہ معافی کے تعلق سے تھا. سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ معافی کے تعلق سے. اگر آپ اپنے پاس لکھنا چاہیں تو لکھ بھی لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جو خاص باتیں کہی ہیں وہ کون سی ہیں. اس لیے کیونکہ جب آپ لکھیں گے آپ ان کو یاد رکھیں گے اور آپ ان کو دوبارہ ریپیٹ بھی کریں گے، ان کو پڑھیں گے بھی اور ان کو سیکھیں گے اور پھر آگے سکھانے والے ہوں گے. جب تک آپ ان کو لکھتے نہیں ہیں، جب تک آپ ان کو ریممبر نہیں کرتے، یاد نہیں رکھتے، تو آپ بھول جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ صرف ہم نے پہلے بھی تقریباً یہ سیریز 2 ہفتے سے چل رہا ہے یہ سارا سلسلہ، اور آج پھر میں اسی کو ریوائز کر رہا ہوں. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ اچھے سے سیکھیں اور ان کو یاد رکھیں، آپ کو وہ باتیں یاد رہیں. کوشش کریں وہ حوالہ جات بھی آپ یاد رکھیں تاکہ آپ کی بائبل سٹڈی میں بھی یہ رہنمائی کریں. ہر سال ہم جو ہے وہ مسیح کی جو صلیبی موت ہے، وہ دکھ، وہ دن، ان سب کو ہم جو ہے وہ اس میں سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم ان کے لیے ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، ان مسیح کے دکھوں کو بھی یاد کرتے ہیں. جس طرح یسوع مسیح نے ہماری خاطر جو ہے وہ بنی انسان کی خاطر کس طرح اس نے دکھ اٹھایا، کس طرح جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، پھر کس طرح جو ہے وہ اس کا خون بہایا گیا، اس کو کوڑے لگے. یعنی یسوع مسیح کی تذلیل جو کی گئی صرف اس لیے ہوئی تاکہ ہم جو ہیں خدا کی حضوری میں بچ سکے، ہم خدا کی حضوری میں زندہ کیے جا سکے، اور ہمارے اوپر جو گناہ، جو ایک دستاویز تھی گناہوں کا، وہ یسوع مسیح نے اپنے کفارے کے وسیلہ سے مٹائی تاکہ ہم سب کا کفارہ ہو سکے. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Father. جی، اس کا حوالہ آپ نوٹ کر لیجئے. لوکا طبیب کی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت ہے. لوکا طبیب کی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت ہے. میرے عزیزو، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ کسی کی بھی جو آخری الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے ہی قیمتی ہوتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنے جاتے ہیں اور ان کے اوپر عمل بھی کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے اپنی ول کو بھی لکھتے ہیں، اور جب ول لکھواتے ہیں تو اس ول کو بڑے غور سے جو ہے وہ سب لوگ دیکھتے ہیں، اس کو پڑھا بھی بڑے غور سے جاتا ہے، بڑی توجہ مرکوز ہوتی ہے اس کے اندر. اسی طرح جب یسوع کے آخری صلیبی کلمات ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بڑے ہی جو ہے وہ قابل جو ہے وہ غور ہیں، جن کو ہمیں دیکھنا ہے کہ یسوع نے جو بڑا کام کیا ہے صلیب کے اوپر، کفارہ جو دیا ہے، اس کے ساتھ چند ایسی باتیں یسوع نے کہی ہیں جن کو ماننا، جن کے اوپر عمل کرنا ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہے. یوں تو سارا خدا کا کلام جو ہے وہ روح کی تحریک سے لکھا گیا ہے، لیکن یہ بڑے خاص لفظ ہیں جو صلیب پر یسوع نے ادا کیے، جب وہ بڑے دکھ اور کرب کی حالت میں تھا، جب بڑی تکلیف میں تھا، تو اس نے یہ باتیں کہی. میرے عزیزو، پہلا کلمہ جو ہے وہ معافی کا کلمہ ہے، اور اس کی 34ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیے. یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. یہ بالکل حقیقت ہے کہ وہ واقعی ہی نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں جو تھی وہ بند تھی، اور اس وجہ سے جسمانی آنکھیں کھلی تھی لیکن روحانی طور پہ ان کی آنکھیں بند تھی. وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، وہ کس کو مصلوب کروا رہے ہیں، کس کو اوپر جو ہے وہ ٹھٹھے اڑا رہے ہیں، کس کو جو ہے وہ مار رہے ہیں، کس کی تذلیل کر رہے ہیں، کس کے منہ پہ تھوک رہے ہیں. یہ ساری باتیں وہ واقعی ہی نہیں جانتے تھے. اس لیے یسوع نے باپ سے درخواست کی، باپ سے یہ دعا کی کہ اے باپ، ان کو معاف کر دے. میرے عزیزو،
इतने दुख के कर्म में से गुजरने के बाद, इतनी तकलीफ सहने के बाद, सारा कुछ होने के बाद यीशु मसीह को थप्पड़ मारे गए, मुक्के मारे गए, यीशु मसीह को कोड़े लगे, यीशु मसीह के ऊपर जो है वो सलीब जो थी, इतनी भारी सलीब उसके ऊपर कंधों पर रख के उसको कलवरी तक ले जाया गया। मेरे चीजों, कितना मुश्किल और कितना कठिन वो रास्ता था, और साथ में कोड़े जो बजते थे, और उसकी तकलीफ और दुख और दर्द जो थी, वो कैसी कर्बनाक हालत होगी उसको। और फिर यीशु मसीह को रात को जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है, और अगले दिन चलता रहता है सारा दिन, 3 बजे तक ये सारा सिलसिला जारी रहता है। 9 बजे यीशु मसीह को, तकरीबन 9 बजे के करीब यीशु को सलीब दे दिया जाता है, और सलीब पर सबसे पहला जो काम है, जो पहला जो कलमा यीशु अदा करता है, वो यही कलमा अदा करता है, ऐ बाप इनको माफ कर दे। मेरे अजीजों, यीशु ने ये सारा कुछ कर दिया है, और हमें पता भी है कि यीशु ने सब कुछ किया है, यीशु ने कफारा दिया है, और ऐसी लानती मौत को कबूल किया है जो कोई भी जो है वो मतलब बड़े संगीन जुर्म जब होते थे उसमें दी जाती थी, ताकि इबरत का निशान बनाया जा सके, ताकि उनको जो है वो एक लेसन दिया जा सके, दूसरे लोग भी इस बात को देखकर डरे, उनको सलीब पे लटकाया जाता था। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह के लिए ये पहले से ही पेशन गोई हो चुकी थी कि वो मसलूब किया जाएगा। यीशु ने भी कई दफा जो है वो इन बातों का बड़े वाज़िह तौर पर जिक्र किया। यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जब जिस तरह मूसा ने बियाबान में बल्ली पे सांप को लटकाया, उसी तरह इब्ने आदम को क्या किया जाएगा, ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह तो पहले ही जानता था कि ये खुदा का प्लान है इस तरह, लेकिन दुनिया को नहीं पता था कि ये प्लान कैसे पूरा होगा, कैसे यीशु मसीह इसको अदा करेगा। लेकिन इन सारी बातों के बाद जो सबसे पहला काम यीशु ने किया वो यही किया, उसने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते। मेरे अजीजों, आज ये कलमा हम अपनी जिंदगी पे इसका असर किस तरह लेते हैं? आज जब हम इसे सीखते हैं, जब इसके ऊपर हम इस पे गौर खोज करते हैं, जब हम इसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, तो फिर हम इसको अपनी जिंदगी के अंदर किस तरह लेते हैं? जब यीशु ने ये कलमा सलीब पे अदा किया, तो हमसे यीशु क्या तवक्को करता है, हमसे यीशु की डिमांड क्या है कि हम अपनी जिंदगी पर इसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम जो है वो इससे बरकत पा सकते हैं, किस तरह ये हमारी जिंदगियों की रहनुमाई करता है। हम इस बात को देखेंगे आज। यहाँ पर मत्ती रसूल की अंजील के अंदर 6 बाब में लिखा हुआ है 14वीं आयत में, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। मेरे अजीजों, जितने लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने बहुत बड़ा, हालांकि आपको पता है कि वो जो है वो यीशु मसीह को जो है वो रूमी जो वो था बादशाह, वो छोड़ना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि यीशु को सलीब दिया जाए, क्योंकि उसको पता था कि ये जो है वो बेगुनाह है। लेकिन जो वहां पे उस वक्त के बाकी फरीसी और सरदार थे और आम लोग थे, जो भीड़ थी, उसको उन्होंने उनके पीछे लगाया हुआ था, और वो यही कहते थे कि भाई इसे मसलूब कर दो। तो मेरे अजीजों, लेकिन यीशु ने वहां पर हमें एक नमूना दिया, यीशु ने वहां पर हमें एक लेसन दिया, और वो लेसन ये दिया, और उसने ये लेसन दिया, ऐ बाप इनको माफ कर दे। बाप से दरख्वास्त की, और इसी तरह से यीशु ने जब मुबारकबादियां सिखाई, जब पहाड़ी वाज अपने शागिर्दों के साथ खिताब किया, तो उनको यही कहा कि तुम क्या करोगे, आदमियों के कसूर माफ करो। अब यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया है यहाँ पर प्रैक्टिकल हमें नजर भी आता है। यीशु ने भी सबके गुनाह और कसूर माफ किए, और आज वो हमसे ये डिमांड करता है, हमें ये सिखाना चाहता है कि हम भी एक दूसरे के कसूर माफ करें। मेरे अजीजों, माफी देना जो है वो नहायत मुश्किल काम है, और ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, कोई नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम तब कर सकते हैं जब खुदा का पाक रूह हमें गाइड करता है, रूहुल कुद्दस हमें लीड करता है। जिस्म के अंदर रहते हुए हम इसको जो है वो कभी भी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि जिस्मानी तौर पे हम जो है हमेशा इंतकाम लेने का सोचते हैं, पर खुदा हमें ये सिखाता है कि तुम्हें क्या करना है, माफ। अब ये भी देख ले, यीशु ने जिंदा होकर, यीशु मसीह
ना तो उन सरदार कहनों के सामने गया, ना फकीयों फरीसियों के सामने गया, जाके उसने ये नहीं कहा लो जी तुहां मैनू सलीब दिता सी, वेखो मैं जिंदा हो गया हुण तुहाडी खैर नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं। यीशु ने उनको उधर ही माफ किया, बाप से दरख्वास्त की, क्या बाप इनको माफ कर। ठीक है, आपसे भी यही दरख्वास्त है खुदा की, आपको भी यही खुदा सिखाना चाहता है। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि जब हम बाइबल के तालब इल्म हैं, जब हम खुदा के कलाम के तालब इल्म हैं, तो हमें ये बात बड़ी सीखने की जरूरत है कि एक दूसरे को माफ करें। कलाम में लिखा है अगर तुम एक दूसरे को माफ नहीं करते तो तुम्हारा बाप भी माफ नहीं करता। दुआए रवानी हम हर इबादत में पढ़ते हैं, चर्चेज में पढ़ी जाती है, घरों में पढ़ी जाती है, लेकिन मेरे तो उसके बावजूद भी उसको असर जो है वो जिंदगियों पे नहीं लिया जाता, उसको उस तरह से अपनी जिंदगी पे अप्लाई नहीं किया जाता। लेकिन खुदा का कलाम ये सिखाता है और यीशु भी यही तालीम देता है प्रैक्टिकली तौर पे भी। यीशु ने मसलूब होते हुए जब सलीब पे गया है तो फिर भी यही बात कही है कि ऐ बाप इनको माफ कर दे। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें भी यही अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए। हमें बाइबल में लिखा है यीशु की मानद बनना है। अगर आप यीशु की मानद बनना चाहते हैं तो फिर यीशु की तरह जो है वो माफ करना भी सीख लीजिए, अपनी जिंदगी में ये अप्लाई कर लें। आपके दोस्त हों, आपके साथी हों, बहन भाई हों, रिश्तेदार हों, कोलीग्स हों, हो सकता है कईयों ने आपके साथ बड़ी ज्यादती भी की, लेकिन आपको यीशु को सामने रखना है। और अगर आपके यीशु ने माफ किया है तो हमें भी माफ करना है। अपने दुश्मनों को माफ कर दे, अपने जो है वो नफरत करने वाले उनको माफ कर दिए। कुछ भी गलत आपसे किया होगा, बहुत ज्यादती भी हो सकती है, लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो हम सेम नहीं रहते, बल्कि हम क्या होते हैं, नए मखलूक बन जाते हैं। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई कीजिए। आइए दूसरे कलमे की तरफ जाते हैं, और दूसरा कलमा है नजात का। दूसरा कलमा किसका है जी? नजात का है। लूका तबीब की अंजील 23वां बाब और उसकी 42वीं आयत है। यीशु मसीह के साथ दो और जो है वो डाकू वहां पर जो है वो लटकाए गए थे, उनको भी मसलूब किया गया था, उनको भी सलीब दी गई थी। अब उनमें से एक डाकू जो है वो उसकी अप्रोच क्या है, वो कहता है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए तो उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को बचा और हमको भी बचा। ये उसे ताना दे रहा है यीशु को। इसकी अप्रोच देखे, ये सेल्फ सेंटर बंदा है, ये सेल्फिश सोच है कि वो सिर्फ अपने आप को देख रहा है कि मैं बचना चाहिए, मेरी जिंदगी बच जाए। हालांकि काम बुरे किए, गलत काम किए हुए हैं, लेकिन गलत काम करने के बावजूद भी ये चाहता है कि मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं जो मर्जी करता रहूं। आज भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं हम अपने तौर से जो मर्जी करते रहे, हमें उनकी प्राइस पे ना करनी। हमें अगर कोई गलती करता है तो आपको पता फिर उसकी प्राइस भी पे करनी पड़ती है, ठीक है। अगर कोई कानून तोड़ता है तो फिर उसका जो है वो उसको जो है वो कानून का जो रिजल्ट है वो भी भुगतना पड़ता है। लेकिन दूसरे डाकू की अप्रोच देखे, मगर उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। अब ये बंदा उसको कह रहा है, ये इसकी सिंसियरिटी देखे, ये बड़ा ऑनेस्ट बंदा है। बेशक ये डाकू है, लेकिन बड़ी ऑनेस्टली के साथ ये बात कर रहा है और ये कह रहा है क्या भाई खुदा से नहीं डरता तूने तो गलत काम किए हैं, तूने तो जो है वो चोरियां की हैं, डकैतियां की हैं, तूने तो शायद हुकूमत के खिलाफ जो है वो भी किया है, बगावत भी की है, तो उसी वजह से तू गिरफ्तार हुआ है और वही सजा तुझे मिल रही है, क्योंकि जो कुछ तूने किया है उसका तो रिजल्ट पा रहा है। और हमारी तो सजा वाजिबी है, वो कहता है आगे, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। अब ये डाकू यीशु के बारे जानता था कि इसने वाकई ही कोई बेजा काम नहीं किया, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी उसे सजा मिल सके। मेरे अज़ीज़ों, ये इसकी ऑनेस्टी देखें, और ये अपना इकरार भी कर रहा है कि हमें जो सजा मिल रही है वो वाजिबी है, क्योंकि जो कुछ हमने किया है उसकी सजा है, हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कुछ नहीं किया। फिर वो यीशु को कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर बड़ी खास बात सीखने की है कि इस शख्स की अप्रोच देखें कि इसने क्या किया है,
اپنی موت کو، چونکہ یہ روحانی طور پہ مردہ حالت میں تھا، جسمانی طور پہ بھی یہ مر ہی رہا تھا، ظاہر سی بات ہے سلیب پہ تھا، تو اس کو انہوں نے مارنے کے لیے لٹکایا تھا، تو اس نے اپنی روحانی جو موت ہونی تھی اس کو زندگی میں کس طرح بدلا؟ جب اس نے ریپینٹ کر لیا، جب اس نے اقرار کر لیا، جب اس نے پوزیٹیو اپروچ لی، کیونکہ وہ دوسرا بندہ نیگیٹو اپروچ میں رہا، سیلفش بیہیویئر میں رہا کہ میں کسی طور سے بچوں، لیکن چونکہ بچنے کی اب کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ اس نے اب اپنے کاموں کا بدلہ پانا ہی ہے، لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ جسمانی طور پہ تو مرے گا، لیکن روحانی طور پہ ضرور وہ خدا کی بادشاہی میں جائے گا۔ آمین۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی خدا سے دور ہیں، ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کیا کریں؟ بڑی اونیسٹی کے ساتھ اپنی خطائیں، غلطیوں کا اقرار خدا کے سامنے کریں، تاکہ خدا انہیں اپنی بادشاہت میں، یسوع انہیں اپنی بادشاہت میں لے کے جا سکے۔ آمین۔ اب بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر ایک بیپٹزم کا جو حکم ملا ہے، یسوع نے کہا ہے کہ جو ہے وہ ساری قوموں میں جا کر انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائیں انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا کرنا ہے؟ بیپٹزم دینا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے اوپر بہت سارے لوگ آرگیو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ ڈاکو تو بغیر بیپٹزم کے ہی خدا کی بادشاہی میں چلا گیا تھا۔ تو میں کئی دفعہ پھر انہیں جواب دیتا ہوں، میں جی ڈاکو تے سلیب تے ٹنگیا سی، وہ دیکھو تے کچھ ٹائم نہیں سی، ہن تسی دسو تسی بھی سلیب تے ٹنگے ہو، یا تے تسی سلیب تے ٹنگے ہو تے پھر تے چلو ٹھیک ہے جی تسی بیپٹزما نہیں لے سکتے، لیکن جے تسی سلیب تے نہیں ٹنگے تے پھر تے بیپٹزما لو، کیونکہ یسوع نے حکم دیا کہ بھائی بیپٹزما دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو جواز بناتے ہیں، جی ڈاکو تو بغیر بپتسمہ ہی لیے چلا گیا۔ بھائی اگر آپ کی حالت ڈاکو جیسی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس سچویشن میں ہیں، لیکن میرے عزیزو یسوع مسیح کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، اگر وہ کسی کو اس طرح لے کے جانا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بلکہ خدا کی تابعداری میں جائیں۔ اور کیا ہوا؟ ڈاکو نے جیسے ہی توبہ کی، جیسے ہی اقرار کیا، ویسے ہی یسوع نے اس کو یہ خوشخبری سنائی کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ فردوس میں ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آپ کسی کی زندگی میں چاہے کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوں، کرمزی کیوں نہ گناہ ہو، لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح نے یہ بھی ظاہر کیا کہ اس نے اس کے گناہوں کو معاف کیا، اور اس نے اس کو یہ گارنٹی کر دی کہ اگر کوئی مجھ پر ایمان لائے گا تو وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوگا، بلکہ خدا اسے جو ہے وہ آسمان پر یعنی اپنی بادشاہت میں شامل کرے گا۔ آمین۔ اب تیسرے کلمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا کلمہ ہے محبت کا۔ میرے عزیزو، یہ بڑا ہی خوبصورت کلمہ ہے، اور برادر شمعون نے بڑے اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا تھا لاسٹ ٹائم۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب ہے، اور اس کی جو ہے وہ 26ویں اور 27ویں آیت ہے۔ یوحنا کی انجیل نوٹ کر لیجئے، حوالوں کو نوٹ کیجئے، جو کچھ آپ سیکھتے ہیں، میں بار بار یہی کہتا ہوں، بائبل کے اچھے طالب علم ہونے کے ناطے یہ ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو لکھیں اور ان کو سیکھیں، ان کو بعد میں پڑھیں بھی، اس کے اوپر غور و خوض کریں۔ محبت کا کلمہ تیسرا کہلاتا ہے، اور یوحنا کی انجیل 19ویں باب اس کی 26ویں 27ویں آیت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ جی، خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ میرے عزیزو، یوحنا جو ہے یہ یوحنا رسول ہے یسوع کا، اور یہ رسول جو ہے وہ سب شاگردوں میں سے چھوٹا تھا۔ اس کی عمر جو تھی وہ تقریباً 25 سال تھی جب یہ خدمت میں آیا، اس نے منادی شروع کی ہے۔ اس کی عمر تقریباً 25 سال تھی، اور یہ پڑھا لکھا بھی تھا، اور یہ یسوع مسیح کی خالہ کا بیٹا بھی ہے، یسوع کی جیسے ہم کہہ لیں کہ ماسی کا بیٹا بھی تھا۔ یہ دو بھائی ہیں، یوحنا اور یعقوب، ٹھیک ہے جی۔ یہ دونوں بھائی مچھیرے تھے، ان کا کام مچھلیاں پکڑنا، انہوں نے اور بھی لوگ رکھے ہوئے تھے، ان کا بڑا اچھا کاروبار تھا۔ تو یہ یسوع مسیح کی خالہ کا بیٹا تھا، اس کی والدہ کا نام سلومی ہے، اور اس کے باپ کا نام زبدی تھا۔ ہم نے پڑھا ہے کلام میں، زبدی کے دو بیٹے تھے، یعقوب اور یوحنا، جو یسوع مسیح کے شاگرد بنے۔ پہلے یہ دونوں کیا تھے؟ کس کے شاگرد تھے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے۔ جب انہوں نے سنا تھا
यीशु ने कहा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बारे में जब कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठाए ले जाता है, इस बात को सुनकर वो यीशु के पीछे आ गए थे। ठीक है, तो ये दोनों जो थे वो पहले यूहन्ना के शागिर्द थे, उसके बाद फिर यीशु के शागिर्द हो गए। तब से लेकर यूहन्ना जो है वो उस वक्त से जो है वो फिर ये दोनों यीशु के शागिर्द रहे। इन्होंने अपनी माँ से दरख्वास्त भी की कि यीशु से दरख्वास्त करें कि हम उसकी बादशाहत में एक राइट हैंड पे हो और एक लेफ्ट हैंड पे हो। मेरे अज़ीज़ो, यीशु मसीह ने इनको एक खिताब दिया, इनको लक़ब दिया, वो ये था, यीशु ने इनको बुआ नरगस के बेटे कहा, और जिसका मतलब है गर्ज के बेटे। असल में क्या था कि ये दोनों बड़े ही शॉर्ट टेम्पर थे, बड़े गुस्से वाले बंदे थे दोनों भाई। तो इस वजह से यीशु ने इन्हें ये नाम दिया, क्योंकि इनका पारा बड़ी जल्दी चढ़ जाता था, 1 मिनट में गुस्से में आ जाते थे, यूहन्ना भी और ये भी, और उसका भाई याकूब भी। तो याकूब जो है वो यीशु मसीह के कलाम की खातर उसको जो है वो हेरोदिस ने क्या कर दिया, कत्ल करवा दिया था। और लेकिन यूहन्ना जो है ये साथ साथ चलता रहा, और ये जो है यीशु मसीह के साथ रहने की वजह से ये बंदा जो है वो इसका दिल बदल गया, इसकी सोचें बदल गई, इसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो गुस्से वाला बहुत था, चूंकि ये गर्ज का, इसका जो इनको लक़ब मिला था वो गर्ज के बेटे था, यानी ये बड़े ही गुस्से वाले थे। तो ये फिर मोहब्बत का रसूल कैसे बन गया? ये यीशु के साथ रहा, और यीशु के साथ रहते रहते ये रसूल जो है वो मोहब्बत का रसूल कहलाया। इस रसूल को ऊंट के घुटनों वाला रसूल भी कहते हैं, क्योंकि ये बड़ी दुआ करता था घुटनों के बल होकर, और इसके घुटनों की शक्ल ऐसे होगी जैसे ऊंट के पांव होते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता था जैसे ऊंट के घुटने होते हैं, तो इसको कहा जाता था ऊंट के घुटनों वाला रसूल। तो ये चूंकि दुआ बड़ी करता था, लेकिन ये सिंगल था, इसने शादी नहीं की, बट ये मुकद्दसा मरियम को अपनी माँ ही जानता था, और उनको साथ लेकर ये फिर इफसस में चला गया, और इफसस में इसने बड़ी देर खिदमत की, वहां पर ये बहुत टाइम जो है इसने स्पेंड किया। ये वो यीशु का शागिर्द था जिसे यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्यार करता था। नंबर 1 ये यीशु मसीह का रिश्तेदार था। दूसरे नंबर पे ये छोटा था उम्र में, बाकी सारे बड़े थे, मोस्टली उनमें से शादीशुदा थे, और ये खुद भी यीशु की बड़ी ताबेदारी में रहता था। तो ये इसने इतनी मोहब्बत की यीशु से, मैं समझता हूँ किसी और शागिर्द ने इतनी मोहब्बत नहीं की। सारे शागिर्द डर के भाग गए, लेकिन ये वाहिद शागिर्द है जो यीशु मसीह की सलीब के पास खड़ा रहा। ठीक है, तो ये वाहिद शागिर्द है जो दलेर भी था, और फिर खुदा ने इसी के ऊपर जो है वो अपना आखिरी जो रेवोल्यूशन है वो भी इसी के ऊपर जाहिर किया। इसने यूहन्ना की अंजील लिखी है, इसने 3 खत लिखे हैं, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, और इसने मुकाशफा की किताब भी लिखी है जिसमें इसे यूहन्ना आरिफ कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे अज़ीज़ों, ये वो खुदा का बड़ा ही खूबसूरत यीशु का जो है वो शागिर्द है, जिसने बड़ी ताबेदारी और वफादारी के साथ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कलमा मोहब्बत का है। यीशु मसीह सलीब पर है, लेकिन अपने जिस्मानी ताल्लुक को नहीं भूला, क्योंकि यीशु मसीह जिस्मानी तौर पे मुकद्दसा मरियम का बेटा था, रूहानी तौर पे यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम का बेटा नहीं है। जितने बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, ये बातें 2-3 हैं, बड़े गौर से सुन लीजिएगा। यीशु मसीह रूहानी तौर पे मुकद्दसा मरियम का बेटा नहीं है, सिर्फ जिस्मानी तौर पे, क्योंकि खुदा का ये प्लान था कि खुदा ने यीशु के लिए एक जिस्म तैयार किया, यानी मुकद्दसा मरियम एक मुकद्दस कंवारी को चुना जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड लेडी है। कलाम ये सिखाता है हर जमाना के लोग उसे मुबारक कहेंगे, और हम उसे इसी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं जिस तरह अपनी माँ को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जहां पर हमारे रूहानी ताल्लुक की बात आती है, तो रूहानी ताल्लुक के अंदर हम सब जो हैं वो एक लेवल पे आ जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये याद रखिए, यीशु मसीह जिस्मानी तौर पे मुकद्दसा मरियम का बेटा था, रूहानी तौर पे नहीं है। जब हम दुआ करते हैं तो हम यीशु के नाम से बाप से दुआ करते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये बात बड़ी खास है। ठीक है, सीखने वाली है कि जब हम दुआ करते हैं तो हमारा रूहानी ताल्लुक होता है, क्योंकि हमारी स्पिरिट जो है वो बाप के साथ कनेक्ट होती है। 3 चीजें इंसान की जिंदगी के अंदर होती हैं, उसकी बॉडी की जो कंपोजिशन है वो किस तरह बनी है, उसकी रूह है, उसकी सोल है, और उसकी बॉडी है। ठीक है जी, ये 3 चीजें हैं। नंबर 1 पे उसकी स्पिरिट आती है,
दूसरे नंबर पे सोल आती है, तीसरे नंबर पे उसकी बॉडी आती है। तो हमारा जो सबसे पहला काम स्टार्ट कहाँ से होता है? सोल से, स्पिरिट से। और स्पिरिट जो है, जो हमारे अंदर पाई जाती है स्पिरिट, क्योंकि हर कोई रूह है, हर किसी के पास एक स्पिरिट है, और वो स्पिरिट हमें खुदा से कनेक्ट करती है, क्योंकि खुदा जो है वो रूह है। बाइबल में लिखा है खुदा रूह है। तो वो हमें, जब हम खुदा से रेवलेशन लेते हैं, या हमें खुदा हमारी रूह में वो सारी बातें देता है। फिर आगे हमारा जो है वो बॉडी का दूसरा स्ट्रक्चर आता है, वो हमारी सोल है, जिसमें हमारा जो है वो थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद बॉडी है जो हमें फिजिकल एनवायरनमेंट से जो है वो अटैच करती है। तो स्पिरिचुअली तौर पे, रूहानी तौर पे हम डायरेक्टली खुदा से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि खुदा रूह है। इसलिए हमें किसी और से दुआ करने के लिए बाइबल हमें ये सिखाती नहीं है, बल्कि बाइबल हमें यही सिखाती। इवन यीशु ने भी कहा कि ए बाप, ठीक है जी, अपने बाप से दुआ करनी। लास्ट टाइम भी मैंने कहा कि इस रिश्ते को बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, और हमेशा इसी रिश्ते को सामने रखिए। जब आप बाप को मुखातिब करें तो इसी तरह से कहें ए बाप। यीशु ने कभी भी बाप को यहोवा कह के नहीं पुकारा, बाप को कभी भी इस तरह से कह के नहीं उसको बुलाया, बल्कि हमेशा अपने रिश्ते को जाहिर किया, ए बाप, ठीक है जी, मेरा बाप, मैं बाप में से निकला हूँ। आपके अंदर भी वही चीजें जानी चाहिए। जब हम कहते हैं ना हम यीशु की मानद बने, तो यीशु की तरह फिर हमें बिहेव करना है, यीशु की तरह, यीशु का करैक्टर अपनी जिंदगी के अंदर लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। और यहाँ पर यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं हुआ, बल्कि सलीब पर भी जाके उसने अपनी जिम्मेदारी को याद रखा है कि माँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसलिए उसने यूहन्ना को जो है वो, जो यीशु का शागिर्द था, उसे कहा, पहले मुकद्दसा मरियम से कहा, ए औरत, तेरा बेटा ये है आज से, क्योंकि अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया है, मेरे कूच करने का वक्त आ गया है, अब मैंने जाना है, मैंने वो जो काम मुझे खुदा ने, जो बाप ने दिया था, वो मैंने पूरा कर लिया है, अब मैं यहाँ से जाऊंगा। तो इससे पहले, जाने से पहले उसने ये जिम्मेदारी पूरी की है। मेरे अजीजों, जितने बहन भाई इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं अपने पेरेंट्स के ताल्लुक से। वो आपने कभी भी उनसे गाफिल नहीं होना, हमेशा उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। अगर आपके मदर है, फादर है, इन तमाम की जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, ठीक है। उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनकी फाइनेंस का ख्याल रखना। और खुदा हमें ये सिखाता है, कलाम हमें ये कहता है कि तू अपने माँ बाप की क्या करना, रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, और इसके साथ फिर वादा है कि तेरी उम्र दराज होगी। तो ये याद रखें, ये बाइबल हमें सिखाती है कि अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। और यीशु ने मसलूब जब सलीब पे था, तो ये हमें एक नमूना, एक पैटर्न दिया है। मैं आज इन बातों पे इसलिए थोड़ा गौर कर रहा हूँ, ताकि आप इनको अपनी जिंदगी में अच्छे तरीके से जो है वो इनके ऊपर अमल पैरा हो सके, इनके ऊपर जो है वो काम करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जिंदगी इसी तरह खूबसूरत हो सके, रूहानी तौर पे आप और ज्यादा खुदा में मजबूत हो सके। आइए मेरे अजीजों, उससे अगला जो है वो कलमा है, वो चौथा कलमा है, कफारे का कलमा है। और ये मत्ती रसूल की अंजील उसके 27वें बाब में लिखा हुआ है और उसकी 46वीं आयत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रसूल की अंजील उसका 27वां बाब है, मत्ती रसूल की अंजील का, और उसकी जो है वो मेरे अजीजों 46वीं आयत है। 27वें बाब की 46वीं आयत, और उसमें यूं लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, इसी बात के लिए यीशु मसीह जो है वो गतसमनी में खुदा के सामने दुआ भी करता है, बड़े दुख की हालत में होता है। उसका पसीना जो है वो गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें बन के, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो क्योंकि जो इंसान ने गुनाह किया था, उसकी जो पूरी कीमत है यीशु ने सलीब पे दी है। और उस पूरी कीमत में ये भी थी, एक चीज शामिल थी कि यीशु मसीह रूहानी तौर पर जो है वो, उसको जो है वो दूरी, सेपरेशन खुदा से बर्दाश्त करनी थी। इस वजह से वो इसके लिए बार बार दुआ करता है, बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि ये पूरी गुनाह की प्राइस यही थी। यीशु मसीह जिस्मानी तौर पे भी दुख उठाया, लेकिन रूहानी तौर पे जो दूरी थी खुदा से, जो सेपरेशन थी, वो भी, क्योंकि इंसान के लिए यही जो है वो पहले से डिसाइड हुआ था
کہ जब वो फल खाएगा, जब गुनाह करेगा तो उसको खुदा से सेपरेशन का सामना करना पड़ेगा। और यीशु ने इसको भी सलीब पर जो है वो अदा किया है। वो जो 3 घंटे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है वो अंधेरा छाया रहा, उसके अंदर बड़ा दुख और कर्ब की हालत यीशु मसीह के ऊपर यही थी। मेरे अजीजों, यीशु ने उसकी पूरी प्राइस जो है वो पे की। और यहाँ पर यीशु मसीह खुदा बाप के सामने जो सलीब पे मसलूब था, तो ये खुदा के सामने, क्योंकि खुदा जो है वो यहाँ पर एज ए मुंसिफ था, एज ए जज के तौर पे था, यूनिवर्स के जज के सामने था और वो उसको जज कर रहा था। इसलिए यहाँ यीशु मसीह ने ये वर्ड भी इस्तेमाल किए, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इससे पहले कहीं भी यीशु ने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किए। यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो खुदा को जब ऐसे जज के तौर पे देखता है तो फिर वो कहता है ऐ मेरे खुदा। लेकिन इससे पहले आप देखें, यीशु ने हर जगह खुदा को बाप कहा है। यानी ये वाजे करता है कि यीशु ने मेरी और आपकी पूरी कीमत अदा की है। और करंथियों के खाते में पौलुस रसूल ये बात लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा का मक़दिस है और तुम कीमत से खरीदे गए हो, इसलिए अपने बदनों से क्या करो, जलाल जाहिर करो। और वो जो बड़ी कीमत अदा की गई है वो बर्रे का लहू है। पतरस अपने खत में लिखता है कि तुम एक बड़ी कीमत से खरीदे गए हो और वो कीमत बर्रे का लहू है मेरे अजीजों। इसलिए अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर कीजिए। यीशु ने आपकी हर खता की कीमत पे की है, यीशु ने आपके हर गुनाह की कीमत पे की है मेरे अजीजों। इसलिए जरूरी है अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करें, अपने बदनों से यीशु के किरदार को वाजे करें। जहां उठते बैठते सोचते ख्याल कर हर वक्त जो है अपनी रफाकत में भी खुदा के किरदार, यीशु के किरदार को जाहिर करें, ताकि लोग जाने कि आप यीशु के शागिर्द हैं। आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आइए हम 5वें कलमे की तरफ जाते हैं, जो जिस्मानी दुख का कलमा है। यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत है मेरे अजीजों। क्या लिखा है यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो उसने कहा मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह जिस्मानी तौर पे बड़ी तशद्दुद की गई, रात से उसको लेके चल रहे हैं, मार रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। जब सलीब पे है तो फिर यीशु कहता है मैं प्यासा हूं। तो मेरे अजीजों, जिस्मानी तौर पर भी यीशु को प्यास लगी थी क्योंकि वो जिस्म की हालत में भी था, और रूहानी तौर पर किस तरह इसको हम अपनी जिंदगियों में लेते हैं। आज मेरे और आपके लिए इसका क्या मतलब बनता है, क्या हम इससे जो है वो अपनी जिंदगियों पे असर लेते हैं, जहां यीशु कहता है मैं प्यासा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ये प्यास रखता है कि हर एक रूह जो है खुदा के पाक रूह से भरे, हर एक रूह जो है वो अपने गुनाहों से तौबा करे, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे और खुदा की बादशाहत में दाखिल हो। कलाम में लिखा है, खुदा ये कहता है मुझे मरने वाले की मौत में, मुझे अपनी हयात की कसम है कि मुझे मरने वाले की मौत में कोई खुशी नहीं, बल्कि हर कोई तौबा करे और रजू लाए, खुदा की तरफ आए। ये खुदा का प्लान है। यीशु मसीह ने ये कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। मेरे अजीजों, क्या हर कोई प्यासा है? क्या हर किसी को प्यास है? किसी को भी नहीं। आपको कह के प्यास लगवाना, आपको बताना पड़ता है, भाई जी भैन जी त्यानू प्यास लगी है, यीशु को लाजो। यीशु ने कहा मैं जिंदगी की रोटी हूं। त्यानू कहना पैंदा, भाई जी तेनू भुख लगी, कलाम पढ़िया करो क्योंकि ये जिंदगी की रोटी है। भैन जी कलाम पढ़िया करो, खुदा दे कलाम नू सीखो। कह के भुख लवानी पैंदी ताकि और खुदा दे कलाम वाला हो। लेकिन मेरे अजीजों, हर कोई प्यासा नहीं। कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा अगर कोई प्यासा हो। आप सोचें, क्या आप खुदा के कलाम की प्यास रखते हैं? क्या आप खुदा के पाक रूह की प्यास रखते हैं? क्या आप उस किरदार की प्यास रखते हैं जो यीशु मसीह का था? अगर नहीं रखते तो आज इस बात को अपनी जिंदगी में ले आइए मेरे अजीजों। ये बड़ी ही खूबसूरत बात है कि आपके अंदर उसकी भूख और तड़प और प्यास हो, तभी खुदा अपने आप को आपके ऊपर रिवील करेगा। अगर आपके अंदर उसकी भूख और प्यास नहीं है तो आपके ऊपर वो कभी भी अपने आप को जाहिर नहीं करेगा, रिवील नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के पाक रूह से भरे, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगियों से कलाम करे, अगर आप चाहते हैं कि आपके घराने बचे, तो लाजम है कि आपके अंदर उसकी भूख और प्यास आनी चाहिए। भूख और प्यास को रखें ताकि खुदा आपको बरकत दे,
تاکہ خدا آپ کی زندگیوں کو بھرے پاک روح سے، تاکہ آپ کی پیاس بجھے، آپ کی جو ہے وہ زندگیاں بابرکت ہوں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر خدا کی تلاش، اس کے پیچھے آنا یہ لازم ہے۔ جتنے اس پہ ایمان لے آئے ہیں اس کی تڑپ اور اس کی بھوک اور پیاس اپنی زندگی میں رکھے۔ اس کے بعد چھٹا کلمہ ہے، یہ کلمہ کاملیت کا ہے اور فتح مندی کا کلمہ ہے۔ یوحنا کی انجیل 19ویں باب کی 30ویں آیت ہے میرے عزیزو، اسی چیپٹر کی 30ویں آیت ہے، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا۔ میرے عزیزو، اب وہ کام جو ہے، جو ذمہ داری خدا کو دی گئی تھی، یسوع مسیح کو باپ کی طرف سے جو پلان جو دیا گیا تھا وہ اب پورا ہو گیا ہے، اور یسوع نے کہا تمام ہوا۔ اب ہر چیز کی، جتنی انسان نے خطائیں، غلطیاں، گناہ کیے، ان سب کی قیمت ادا کر دی گئی۔ اب انسان کے لیے وہ راستہ کھل گیا جو بند تھا، اب جو دیوار تھی اس کو گرا دیا گیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یسوع نے کہا تمام ہوا تو اس وقت کیا ہوا، ہیکل کا پردہ پھٹ کر جو ہے وہ دو حصے ہو گیا۔ جہاں پر خدا کی حضوری ہوتی تھی، جہاں کوئی انٹر نہیں کر سکتا تھا، یسوع نے جیسے ہی کہا تمام ہوا اور وہ پردہ پھٹ کے اس وقت کیا ہوا، دو پار ہوا۔ یعنی اب باپ اور انسان کے درمیان کی جدائی ختم ہو گئی۔ اب باپ اور انسان کا ملاپ جو ہے وہ کروانے والے نے کہا، اس نے یسوع نے اپنا کفارہ دے کر کہہ دیا اب تمام ہو گیا ہے۔ جو کچھ میرے ذمہ تھا وہ میں نے صلیب پہ پورا کر دیا ہے۔ انسان کی قیمت، انسان کا عوضی بن کر جو ہے وہ میں نے اس کی جگہ پہ موت کو گلے لگایا ہے۔ میں نے اس کا کفارہ دے دیا ہے، میں نے اس کی خاطر اپنا خون بہا دیا ہے۔ اب اس کی نجات کا کام کیا ہو گیا ہے؟ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ وہ فتح مندی ہے، اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ ہاللیلویہ۔ کامل کرنے والے اور ایمان کے بانی یسوع کو تکتے رہے میرے عزیزو۔ یسوع مسیح ہمیں کامل کرتا ہے، وہ خود بھی فتح، اور اس نے فتح سے بڑھ کر ہمیں غلبہ دیا ہے، اور اس کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے تاکہ ہم گناہ کے اوپر غالب آ سکے، تاکہ گناہ ہمارا ماسٹر نہ بنے، تاکہ گناہ ہماری زندگیوں پہ اپنا کنٹرول نہ لے، بلکہ ہم اپنے بدن پر اپنا کنٹرول رکھیں پاک روح کے وسیلہ سے، تاکہ ہم گناہوں سے دور رہیں، گناہ کے اوپر غالب آئیں، اور بڑی فتح مندی کے ساتھ جو ہے کہیں کہ خدا نے ہمیں فتح سے بڑھ کے غلبہ دیا ہے۔ آمین۔ ابلیس اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں پہ کنٹرول کرتا تھا، لیکن اب آپ کسی کی زندگی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، کیونکہ یسوع نے فدیہ دیا ہے، یسوع نے کام پورا کیا ہے، اور اس نے ہر چیز کی پرائس صلیب پہ پے کی ہے۔ آمین۔ اس لیے یہ کام جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ پریز دا لارڈ۔ آئیے 7واں کلمہ جو ہے وہ دوبارہ ملاپ کا کلمہ ہے۔ لوکا طبیب کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت ہے۔ 46ویں آیت ہے۔ آئیے یہ آخری آیت ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں وائنڈ اپ کروں گا کلام کو۔ جی 46ویں آیت میں لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ میرے عزیزو، اب یہاں پر پھر یسوع باپ کہہ کے پکارتا ہے، کیونکہ اب انصاف ہو چکا ہے، کیونکہ اب فدیہ دیا جا چکا ہے، اور پھر وہ اپنے واپس اس رشتے میں آتا ہے اور کہتا ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ یسوع اس بات کو جانتا ہے کہ باپ ہی ہے جہاں سے روحیں آتی ہیں انسانوں کی، جہاں سے روحیں جو ہیں وہ خدا کے پاس بہت ساری ارواح ہیں، وہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور یسوع نے کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میرے عزیزو، جب آپ زبور 31 پڑھیں اور اس کی 5ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی یہی آیت لکھی ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ جو جوئش ٹریڈیشنز ہیں اس کے مطابق بچے جب رات کو سوتے ہیں، گھر میں کوئی بھی سوتا ہے، جب دعا کر لیتے ہیں تو اس وقت سونے سے پہلے ہی ان کی دعا ہوتی، ہر کوئی ان میں سے یہ دعا کرتا ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو یسوع نے یہ وہی بات وہاں پر کہی کہ باپ تو ہی ہے، واحد اونلی تو ہی ہے جو ہماری زندگیوں کا مالک اور خالق ہے۔ آمین۔ یسوع نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی جان خود دیتا ہوں، کوئی مجھ سے لے نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر یسوع نے جب صلیب پر آخری بات جو کہی، اس نے یسوع نے یہ کہا
اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ باپ کو پتا ہے کہ کیا کس طور سے بیٹے نے اپنا سارا جو وہ پلان تھا اس کو کس طور سے جو ہے وہ منصوبے کو پورا کر دیا. اب وہ کام ہو چکا ہے. اب انسان آزاد ہو چکا ہے, ابلیس سے کے کنٹرول سے باہر آ چکا ہے, گناہ کا کفارہ دیا جا چکا ہے, انصاف یعنی منصف جو ہے اب انصاف کر چکا ہے, اور یسوع مسیح اس میں کامیاب ہو چکا ہے. بڑی فتح کے ساتھ, بڑی کامیابی کے ساتھ یسوع نے صلیب پر انسان کا کفارہ دے دیا ہے, اور سارے بنی نوع انسان جو ہیں وہ آزاد ہو چکے ہیں. میرے عزیزو, یہ اس لیے ہوا کہ یسوع کے کفارے کی وجہ سے. آئیے ہم سب یسوع کا شکریہ ادا کریں. آئیے کہیں خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. آئیے کہیں یسوع میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے اس کفارے کے لیے, اس خون بہانے کے لیے, اس بڑے دکھ اور بڑی تکلیف کو سہنے کے لیے. میرے عزیزو, یسوع مسیح کبھی اپنے باپ سے جدا نہیں ہوا. وہ کہتا ہے اس سے پہلے کہ دنیا بنی میں تیرے ساتھ رفاقت رکھتا. آمین. یہ خدا کا ایک بڑا خوبصورت منصوبہ تھا, اور یہ کس لیے ہوا؟ کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے. بائبل میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. آئیے کہیں یسوع تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. آئیے کہیں تھینک یو جیزس. ہر کوئی کہے تھینک یو جیزس. اس کفارے کے لیے یسوع میں تیرا شکر کرتا ہوں. کہیے یسوع میں شکر کرتا ہوں. خدا باپ کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بنی انسان کے لیے دے دیا. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے.